द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के जो वेरियस टाइप्स हैं उसको अभी डिटेल में जैसे डिस्कस कर रहे हैं. अप्रेंटिस ट्रेनिंग, नंबर 1 इज apprentice training. So what is apprentice training? Under apprentice training, theoretical knowledge or theoretical instructions and practical learning both are provided to the trainees, okay, in the institute. So classroom lectures are followed by practical work. So classroom lecture भी होता है, साथ में practical work भी, जैसे students जो हैं they are doing the practical job also, okay, practical work. So theory plus practice both goes together. So ITIs are the best example where apprentice training is being provided to the students. What is the aim of apprentice training? It aims to develop all-round craftsmanship among the children, okay, among the students. Next, it is an earn when you learn skill. So apprentice training को earn when you learn scheme क्यों कहा गया है? Because the trainees are getting a stipend during their training period. So training period के दौरान उनको जैसे stipend मिलता है, that's why it is also called as earn when you learn scheme, right? Next we will look at the merits and demerits of apprentice training. Number 1 merit is it combines theory and practice. Just now we have discussed theory and practice, दोनों के combination से जो जैसे ये चल रहा है. Number 2 is training acquire skills which are valuable in the job market. Job market में जो skills जैसे जरूरी है, training वो सारे skills को learn करता है. Okay. Next advantage is it provides skilled workforce, okay, to industries. इंडस्ट्रीज को स्किल्ड वर्कफोर्स भी मिल जाता है एज दे हैव कंप्लीटेड द अप्रेंटिस ट्रेनिंग. ओके. डिमेरिट्स इज नंबर 1 इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. अभी तो हम लोगों ने देखा ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग लेस टाइम टेकिंग है, बट नाउ वी आर गेटिंग दिस पॉइंट इट इज टाइम कंज्यूमिंग. अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज वन ऑफ द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उसमें टाइम कंज्यूमिंग आ गया एंड एक्सपेंसिव. Why it is time consuming and expensive? Because the period of training is quite long. Period of training जैसे होता है 1 to 5 years जैसे रहता है, उसके दौरान ट्रेनी को स्टाइपेंड देना होता है. Okay, that's why this is expensive from that perspective and time consuming too. Okay. Next demerit is many persons leave the training program in between or midways. क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है 1 to 5 years जैसे रेंज में होता है. सो फॉर दैट रीजन समटाइम्स द ट्रेनीज लीव देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम midways. Okay children, so this is all about apprentice training. Now we will look at internship training, another type of on the job method of training. So what is internship training? Internship means a joint program of training in which educational institute and business firm cooperate. यहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस फर्म, ठीक है, तो दोनों का कोऑपरेशन से जैसे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है विच इज कॉल्ड एज इंटर्नशिप ट्रेनिंग. ओके. इट हेल्प्स टू मेंटेन ए गुड बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. दोनों ही मेथड में ये चीज है बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज जनरली यूज्ड इन प्रोफेशनल वर्क, MBBS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और CS कंपनी सेक्रेटरी. सो ये सारी चीज़ों में जैसे स्टूडेंट्स वाइल डूइंग देयर स्टडीज दे यूज टू डू देयर इंटर्नशिप, राइट. नेक्स्ट वी विल लुक एट द टाइप्स ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग that we have discussed. There are 2 types of the job method of training. One is vestibule training and another is classroom training. So vestibule training, as the name suggests, vestibule means an artificial setup. Okay. So a training center called vestibule, जिसको vestibule कहा जाता है, that is being set up and actual job conditions are duplicated or simulated. Simulate किया जाता है means simulate means duplicate. जो एक्चुअल जॉब कंडीशन है उसको डुप्लीकेट किया जाता है इन आउटसाइड. ओके, नॉट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस ट्रेनिंग इज गिवन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड. एंड एक्सपर्ट ट्रेनर्स आर एम्प्लॉयड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग. जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं उनको जैसे लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स.
which are identical with those used at the workplace. वर्क प्लेस में जो भी मशीनरीज वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स है सेम उसी टाइप के इक्विपमेंट्स जैसे वहां पे भी लगाए जाते हैं इन विच द ट्रेनिंग लर्न्स. What are the various merits of vestibular training and demerits of vestibular training? Now we will look at. Number one is the training can concentrate on learning. Okay, so learn करते हुए वो concentrate कर सकता है without any disturbance because the training is being provided away from the workplace, so there is no workplace noise. Okay, number two is the method is essential in cases where on the job training might result in a serious injury. जहाँ पे on the job training से serious injury हो सकता है या तो कॉस्टली कोई भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है कोई भी मशीनरीज वगैरह जैसे, तो उस केसेस में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जैसे वेस्टिबल ट्रेनिंग इज क्वाइट सुइटेबल. नेक्स्ट मेरिट इज इट परमिट्स द ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस विदाउट द फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड. मीन्स ट्रेनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है विदाउट एनी फियर. ओके, सो उसको ये डर नहीं होता है कि मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है या मेरे को कोई देख रहा है. ओके, सो ये डर भी नहीं रहता है, सो दैट सुपीरियर या को वर्कर्स कोई भी मेरे को जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट फियर इज नॉट देयर विद इन द ट्रेनिंग. नेक्स्ट, इट इज वेरी यूजफुल इन ट्रेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ए टाइम. ओके, so this is another merit in the same kind of work. Large number of employees can get training at a time. Demerits of vestibular training are number one, it is most expensive क्योंकि पूरा आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएट करना, फिर मशीनरीज वगैरह लगाना, एक्सपर्ट ट्रेनर्स को लेना, सो ऑल दिस इन्वॉल्व कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, सो इट इज कॉस्टली मेथड और एक्सपेंसिव मेथड of training. Next demerit is as the training situation is artificial, the trainee will not get the real environment. Okay, so वो feel उसमें नहीं आएगा, वो feelings नहीं आएगा कि real environment और real job environment का feeling employees में और training में नहीं आता है. This is another demerit. Next is separation of training from the supervisory responsibility may lead to problem in the organization. ट्रेनिंग को जैसे अलग किया जाता है, सुपरवाइजर जो सुपीरियर होते हैं वो देख नहीं पा रहे, सो ये उनको सेपरेटली ट्रेनिंग देना, दिस मे कॉज प्रॉब्लम टू द ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट अनदर ऑफ द जॉब मेथड इज क्लासरूम ट्रेनिंग. क्लासरूम ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन कंपनी क्लासरूम. कंपनी के क्लासरूम में जैसे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिया जाता है या तो कंपनी के ओन क्लासरूम में लेक्चर्स, केस स्टडीज, दिस आर द एग्जांपल्स, ग्रुप डिस्कशंस, ऑडियो विजुअल एड्स, दिस आर बीइंग यूज्ड टू एक्सप्लेन नॉलेज एंड स्किल्स टू द ट्रेनीज अंडर क्लासरूम ट्रेनिंग. ओके, नेक्स्ट वी विल लुक एट द हिंड्रेंसेस ऑफ ट्रेनिंग. सो व्हाट आर द वेरियस हिंड्रेंसेस? नंबर वन इज लैक ऑफ द मैनेजमेंट सपोर्ट. ट्रेनिंग को अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट इज वन ऑफ द हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल ऑन द वे ऑफ ट्रेनिंग. नंबर टू इज लैक ऑफ फेथ इन यूजफुलनेस ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग यूजफुल है, अगर ये फेथ नहीं है एम्प्लॉइज का, देन ऑल्सो दे विल नॉट listen or learn the things properly. Lack of willingness on the part of trainees. Trainees अगर willingfully learn नहीं करना चाहते, then that is also one of the obstacle or limitation. Next, shortage of qualified trainers. अगर proper trainers नहीं है, qualified trainers नहीं है, that is also another obstacle. And last one is shortage of funds that required for training. So training के लिए जो funds का requirement है, अगर वो funds नहीं है, then उसका भी शॉर्टेज जैसे है, देन ऑल्सो दिस बिकम वन ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर ट्रेनिंग. राइट चिल्ड्रन, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग एंड द हिंड्रेंसेस. थैंक यू.